Hello everyone, welcome to the new video and we'll continue discussing the newspaper dated February 7th, 2022. Of course, you know that we are doing it from both the prelims and mains perspective. Those of you who are new to the portal, by chance you have landed on my profile on YouTube, please do check the earlier videos for both the month of January and February. And in case you like the videos, you find the content relevant for your preparation, please do like, comment, share and subscribe to the channel. You will also get certain links in the comment section, the pinned message, as well as in the description box of this particular video, wherein I have shared the links for the other courses which are there on the channel and a Telegram channel link from where you can, get access to any PDF or something if I'll be uploading, or let's say any updations or information about the same. Also, two playlists of the month of January and February, which we are covering simultaneously, The Hindu. So let's continue our discussion. February 7th is what we will do. It basically starts from here, the first page. So all of us know about the situation that we are in, and we have lost such a personality. I think she need not have, of course, any introduction, and I think all of us are moved by whatever has happened. Yes, this is a old news. You will get maybe the uploaded video on 8th of February. So चीज़ें थोड़े वक्त पहले हुई हैं, but still this is something I think I should have mentioned and I should definitely do. उसके अलावा अगर हम न्यूज़ पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर हम जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कैरी ऑन कर रहे थे, इन द फर्स्ट पेज ऑफ 7th of February there is this one act which they have mentioned which relates to your art and culture, and that is why you should know about this act. ठीक है, the act which is mentioned is the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958. हियर दे हैव टॉक्ड अबाउट, थोड़ा ना उन्होंने एरिया लिमिट को लेके बात करी है कि यूजुअली जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो सेंटर जिनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेती है, सो 100 मीटर रेडियस अराउंड दोज मॉन्यूमेंट्स वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ प्रोहिबिटेड, अभी तक जो चल रहा था. Now this could be replaced with site-specific limits to be decided by an expert committee. Basically क्या बात जो कह रही है कल्चर मिनिस्ट्री, वो ये कह रही है कि अभी जो सिस्टम चलता है ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, वो ये होता है कि द मॉन्यूमेंट्स विच आर सेंट्रली प्रोटेक्टेड, उन सब के आसपास जो रेडियस में 100 मीटर के डिस्टेंस तक में कोई कंस्ट्रक्शन दे आर नॉट अलाउइंग. बट नाउ दे आर टेलिंग दैट नाउ वी कैन think about amending the act and maybe bring important changes through which we will only do the site specific limit. क्योंकि हो सकता है ना कुछ sites को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत हो कि वहाँ कंस्ट्रक्शन ना हो, या कुछ साइट्स को कम की हो सकती है. सो नाउ इट शुडेंट बी अ यूनिवर्सल अप्रोच फॉर ऑल द सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, इट शुड बी साइट स्पेसिफिक. ये बेसिकली इनका न्यूज़ है. लेकिन अभी जो कि इस पर कुछ फाइनल कन्फर्मेशन नहीं है, या फिर लेट्स से यू से कि अभी तो ये रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की, उस पर वो क्या बात करेंगे और आगे कैसे क्या होगा, मतलब दैट्स गोइंग टू बी अ लॉन्गर प्रोसेस. बट आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है. फर्स्टली यू हैव टू डू सेपरेटली दिस एक्ट. द रीज़न आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू कैन हैव द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट एट टाइम्स इन योर आंसर्स ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे चीज़ों से रिलेटेड है आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट में, तो आपको इससे बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे विच इज़ अ सेक्शन इन योर GS 1 syllabus. Apart from that, they have also mentioned about the Archaeological Survey of India. So as an organization आपको पता होना चाहिए कि ये जो ASI है which takes care of the monument protection etc. conservation, किस तरीके की बॉडी है, किस तरीके से काम करती है. Then here they have also talked about अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट होता है जो proposed amendment है, that would change section 20A of the act. This act they are talking about, which refers to the prohibited areas, to rationalize the prohibited and regulated areas. बाकी अभी कमिटी और ये सब जितना टाइम लेगी, तो हमें परेशान नहीं होना है. एग्जाम्पल्स इस तरीके के जो भी मॉन्यूमेंट्स के वो देते हैं, कहाँ लोकेटेड हैं और रफली किस सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए. इन योर आर्ट एंड कल्चर बुक व्हेन यू डू योर आर्किटेक्चर सेक्शन, वहाँ पर आपको कुछ मॉन्यूमेंट्स से आपको द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग दैट अप, ऐसे नाम आपको कुछ मिल जाते हैं, दैट हु कमिशन्ड दी बिल्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट, तो वो आप नोट करके रख सकते हैं. बट एटलीस्ट द प्लेस एंड रफली द टाइम शुड बी डन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, आई डोंट फाइंड एनीथिंग रेलिवेंट हियर. द थर्ड पेज, या सो एनवायरमेंट रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ जो है वो हमको देखने को मिल रही है. सो दिस इज़ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी रिलेटेड. Here they say
an oasis in the heart of a concrete jungle. Now if you are not aware about the term oasis, तो सबसे पहले तो आपको ये सर्च करना चाहिए. वैसे तो ये बचपन में क्लास 5-6 में पढ़ाया जाता है in your geography, but in case you are not aware about it, I would recommend you to please check, because this is how you keep learning, the basic concepts also. At the same point of time, you are able to relate with the specific news that they are dealing with. अब यहाँ पे what they have talked about, गुरुग्राम, ठीक है, जिसका पहले नाम गुड़गांव था, वहाँ पर उन्होंने एक वेटलैंड की बात की है, द पसाई वेटलैंड्स. नाउ द न्यूज़ सेज, अगर आप इस शॉर्ट में इस चीज़ को एक बार देखते हो, द पसाई वेटलैंड्स ऑफ गुरुग्राम हैज श्रंक टू अ क्वार्टर ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज ओवर द ईयर्स. अभी कुछ साल पहले की बात है, यूपीएससी में दे हैड आस्क्ड अ प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट दैट, दे गेव यू फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द सीज, द वाटर बॉडीज, एंड दे टॉक्ड कि उसमें से कौन सा श्रिंक हुआ है, जिसमें मेजर एग्जाम्पल वॉज एरल सी, क्योंकि वो उस टाइम न्यूज़ में रहा था कि वो श्रिंक हो गया है. तो इफ़ सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आर फिगरिंग आउट, बिकॉज इन्वायरमेंट एज अ स्पेसिफिक सेक्शन इज एनी वेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. तो ऐसे जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आपके पास सेपरेट होना चाहिए, ताकि आपको एकदम से स्ट्राइक कर जाए. अगर प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो, इन केस दे डू नॉट आस्क एनी सच रिलेटेड थिंग्स इन द प्रीलिम्स, यू ऑलवेज हैव द एडवांटेज of using such examples in your mains paper, GS3, which deals, one of the section which deals with the environment section, and they talk about biodiversity and conservation. Therein these things only come up. ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी. तो अब उसमें जैसे इन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर के बात की है, वेटलैंड एज अ कॉन्सेप्ट आई हैव टॉक्ड अर्लियर ऑल्सो दैट यू नीड टू नो. IUCN क्या है आपको पता होना चाहिए. सम बॉडीज़ लाइक लेट्स से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज़ एन NGO, नेटवर्क ऑफ NGO. ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए. देन दे से दैट टिल अ डेकेड अगो, मतलब करीबन 10 साल पहले, द पसाई वेटलैंड्स वॉज अ टॉप बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन. सो इमेजिन, ये 10 साल पहले तक टॉप बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन था, जो कि डॉक्यूमेंट हुआ था बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. और वहाँ पे 281 स्पीशीज़ ऑफ एवियन पॉपुलेशन, एवियन इज़ लाइक द बर्ड्स कैन फ्लाई, वैसे स्पीशीज़ यहाँ पर मिले थे. लेकिन धीरे धीरे इट हैज़ बीन नोटिस्ड कि अब वो साइज में श्रिंक करा. यू कैन रीड द होल आर्टिकल एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. बट जो चीज़ें मैं आपको रेकमेंड करूँगी अलग से सर्च करने के लिए, वो एक है इन जनरल अबाउट द वेटलैंड्स. ऑफकोर्स आप लोकेशन और एग्जाम्पल याद रखोगे इस पर्टिकुलर केस में. देन अनदर थिंग इज़ अबाउट IUCN, अनदर थिंग इज़ अबाउट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. आई थिंक दैट वुड डू. ऑल्सो यू कैन रीड अ बिट ऑन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कि और किस किस चीज़ से डील करते हैं. रेस्ट आई थिंक वुड बी ओके. नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन दी वर्ल्ड न्यूज़ व्हेन वी यूज्ड टू डू एंड इन द इंटरनेशनल रिलेशन एस्पेक्ट्स जब हम करते थे, तो मैंने आपसे 2-3 चीज़ों को लेकर बात करी हुई है इन द प्रीवियस वीडियोज़, वेरिन इन टॉक्ड अबाउट कि इस तरीके से लेट्स से कोई भी माइग्रेंट ग्रुपिंग है, कोई भी रिफ्यूजी ग्रुपिंग है, या फिर कोई भी ऐसे रेबेलियन ग्रुप हैं हु आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, दे आस्क यू टू मैच, or militant group and they ask you to match in the prelims. So same cheese could be applied in the case of India also when we do it state wise. For example, here they talk about the Bru refugees, so they can ask you to match about it. तो यहाँ पे अभी इन्होंने त्रिपुरा Bru refugees in त्रिपुरा की बात करी है, and they say that who are originally from the neighborhood आपका मिज़ोरम, ठीक है, नेबरिंग मिज़ोरम. तो आपको पता होना चाहिए रफली कि द ब्रू रिफ्यूजीज बिलोंग टू विच एरिया. अपार्ट फ्रॉम दैट सेपरेटली आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया 7 सिस्टर्स प्लस जो आपका सिक्किम है, वो पूरे स्टेट का जो लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन. ऑफकोर्स देयर आर मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो दैट यू वुड बी you should be interested rather in covering the northeastern part of India, because that's a very crucial aspect of the country. and उनका geographical location के अलावा cultural aspects हो गया या फिर historical कुछ चीज़ें हो गई, मालूम होना चाहिए. नेम, द कैपिटल्स, द लोकेशन, क्योंकि ना वो याद करना, छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, वो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए यू कैन यूज़ निमोनिक्स ऑल्सो. I will also try to upload a couple of map related pointers which I have earlier taken as a course on an academy, but I think now I can start doing those activities because that is long ago that I did there. So I will try and teach the atlas related aspects also. Let the thing settle down in a couple of days. Let us figure out, let us complete the first January वाला, क्योंकि वो थोड़ा सा भी डिले रह रहा है. Once I will be finishing the whole January aspect, only then I'll be able to come up with something static. But I am also planning to do that very soon. I would just need your support for the same, and you can keep giving me your feedbacks if you want to.
और उसमें फिर हम वो मैपिंग वाली चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं, एटलस अच्छे से कवर कर सकते हैं. अनदर रिलेटेड न्यूज़, इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़, फिर से बाकी जो है टाइगर हैबिटेट को लेके, टाइगर रिजर्व्स हो गए या टाइगर पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ स्टेप्स हो गए, मेजर्स हो गए, और जस्ट जनरल अबाउट द टाइगर्स. दे आर अ फेवरेट सेक्शन इन प्रीलिम्स. Environment anyways is a favorite section because of the Indian Forest Services examination also, but within that also tiger related questions are very much there. So here they talk about the tiger reserve and they talk about this particular tiger reserve जो कि है सटकोसिया tiger reserve in Odisha. तो you should know the state of course, and they say that the tiger that was relocated from the Kanha reserve forest. तो ये whole story क्या है relocation की, अब ये देखिए क्या बोलते हैं. 15 years after declaration as a tiger reserve and failure of the revival of big cat population through India's first interstate tiger relocation program. तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इंडिया का जो पहला इंटर स्टेट टाइगर रीलोकेशन मतलब एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में मूव करवा रहे हैं, रीलोकेट करवा रहे हैं. तो ये कहाँ हुआ? सटकोसिया में हुआ, ओडिशा में जहाँ पर है. नाउ दे आर अगेन मेकिंग द एफर्ट्स कि हम वापस से उसको एक टाइगर हैबिटेट की तरह स्टैब्लिश करें. आप पूरा न्यूज़ पढ़ेंगे, उसमें मैंने कुछ काम की चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं. अभी के टाइम में क्या है, इस एरिया में देयर इज़ नो ह्यूमन प्रेजेंस एंड दे फील दैट वी नीड टू एक्सपैंड द इनवायलेट जोन सो दैट द रिजर्व बिकम सूटेबल फॉर द टाइगर्स. उसको वापस से बनाने की कोशिश की जा रही है. अच्छा, ये जो डिक्लेयर हुआ STR जो आपका सटकोसिया टाइगर रिजर्व है, दैट वाज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व इन 2007. तो 10 साल बाद 2017 में जो अनदर बॉडी दैट यू हैव टू प्रिपेयर. नाउ सी यू हैव गॉट द 4 important things that you have to prepare as a static portion from your environment thing, which is National Board for Wildlife. They tried to rationalize STR boundary by excluding 104 villages. ये सब सिर्फ जानने के लिए है, इसका कोई यूजेज नहीं है. जस्ट डू दिस बॉडी सेपरेटली. अच्छा, जब डिक्लेरेशन हुआ एज अ टाइगर रिजर्व इट हैड अबाउट 12 टाइगर्स, बट ओवर द ईयर्स धीरे धीरे पॉपुलेशन इट जस्ट dwindled. It is now left with only 1 tiger. However, the lone big cat has been missing for past 2 months. तो ये सारे issues हैं यहाँ पे basically, the challenges that this particular reserve is facing. To revive tiger population here, India's first interstate tiger relocation program was launched by way of import of a pair of tigers and tigress from Kanha Tiger Reserve and Bandhavgarh Tiger Reserve. ये important है कि पहला जो इंटरस्टेट टाइगर रिजर्व टाइगर रीलोकेशन हुआ था वो कौन कौन से टाइगर रिजर्व से हुआ था और कहाँ इनको लेके आया गया था. लेकिन इनका ये भी कहना है that this program had failed mainly because of hostility of the local community. So ये सारे issues हैं which you can use in your mains answer writing. प्रीलिम्स के लिए तो सिर्फ इतना ज़रूरी है, वो चल जाएगा. बाकी बॉडी के बारे में आप पढ़ लोगे चल जाएगा, बाकी लोकेशन के बारे में आप पढ़ लोगे तो चल जाएगा. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तो इतना काफ़ी है. बट इन द मेन्स व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द इश्यूज दैट आर बीइंग फेस्ड, वो आप मेंशन कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल हियर दे हैव शोन यू कि लोकल कम्युनिटीज़ के हॉस्टिलिटी की वजह से, उनके इंटेंसिव यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज जो टाइगर रिजर्व के लिए बने होते थे उसके वजह से टाइगर died in a poacher's trap. Villagers opposed their presence after it strayed into human habitation. तो humans का क्या interference हो रहा है in the way the tigers are living. And finally जो tigress थी she was sent to मध्य प्रदेश वापस से, ठीक है, जहाँ से लाया गया था. अच्छा, ये another authority है which you have to prepare, National Tiger Conservation Authority, which deals with things related to tiger conservation etc. तो एक आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ करना है, एक आपको ये NTCA करना है. उसके अलावा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर 3 दिखाए थे. IUCN तो अलग से करना ही है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करना है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल करना है, थोड़ा बहुत इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी प्लीज़ डू दैट. नेक्स्ट पेज पे there is a term mentioned cabinet expansion. The whole अभी the news, क्योंकि ये सब specific इनका state related होता है, is not of our business. लेकिन what do you understand by the term cabinet in general from the static perspective is what you have to do. So GS2 में when you do your polity वाला section, लक्ष्मीकांत book में, so there is a chapter जहाँ पर आप council of ministers वगैरह पे बात करेंगे, उसी के साथ में you do the topic of cabinet. Static अच्छे से दिया हुआ है, उसमें differences दिए हुए हैं, पूरा table बना के दिया हुआ है, prepare from there. अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है एपिक्स काउंसिल टू मीट ऑन द वाटर बोर्ड्स परव्यू. अब अगेन
चूँकि interstate disputes are an important section that I have talked about earlier also. Also talking about the water boards, ठीक है, water related issues जो है, water sharing disputes related चीज़ें जो हैं, वो सब हमको figure out करना है, जो कि आपका GS2 में भी आता है. तो आपको गवर्नेंस एस्पेक्ट से वो सब पता होना चाहिए. उसी में एड ऑन करके, फॉर एग्जाम्पल हियर दे हैव टॉक्ड अबाउट वन मिनिस्ट्री. नाउ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो सिलेबस का सेक्शन इन योर GS2 दैट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, तो आप उसको वहाँ से करेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. इसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि ये थोड़ा मर्ज करके बना था, तो किसको किसको मर्ज करके बना था ये सब आपको बैक एंड से जाके पता होना चाहिए. एंड कौन कौन सा प्रोजेक्ट किस किस जगह पर, लेट्स से कभी पहले भी मैंने बोला है, कोई रिवर का नाम है, कोई फॉल का नाम है, कोई डैम का नाम है, वो सब की आपके पास लिस्टिंग होनी चाहिए. लोकायुक्त ऑर्डिनेंस, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं. आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस टू यू एंड आई हैव आस्क्ड यू टू रेफर टू द स्टैटिक पोर्शन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त. ठीक है, डू इट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, इट इज गिवन देयर, अ होल सेपरेट चैप्टर इज गिवन देयर, यू विल नॉट नीड टू वरी अबाउट इट. एंड देन दे टॉक अबाउट द टर्म ऑर्डिनेंस. नाउ ऑर्डिनेंस ऑल्सो एज अ सेपरेट सेक्शन इज गिवन इन लक्ष्मीकांत. जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे एंड गवर्नर पढ़ेंगे, इन दोज टू चैप्टर्स यू विल डिस्कस अबाउट ऑर्डिनेंस. तो होता क्या है इन डिटेल, एंड देन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ रिलेटिंग टू ऑर्डिनेंस एंड हाउ दिस इज रिलेटेड. आप एक बार इसको पढ़िएगा, बिकॉज ये अभी जो हम 8th का न्यूज़पेपर अभी कवर करने वाले हैं इसके जस्ट बाद में, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन 8th ओनली, 8th of February, तो इसलिए मुझे पता है कि उस 8th के न्यूज़पेपर में अगेन दे हैव गिवन दिस इन न्यूज़. ठीक है, तो ये भी फॉलो अप में आ रहा है. That is why you will have to do this. Earlier also this was there and now it's continuing. So लोकायुक्त, अच्छा ये तो स्टेट स्पेसिफिक है, पर हमें स्टेट स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है, हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है कि लोकायुक्त का कॉन्सेप्ट होता क्या है, एंड देन व्हाट इज ऑर्डिनेंस एंड हाउ दे आर रिलेटेड इन दिस पर्टिकुलर न्यूज़. Karnataka to survey the monuments in all talukas. Now here also, because it is just related to art and culture and like conservation, preservation of the monuments etc. इसीलिए बस मैंने यहाँ पे इसका मेंशन करा. अदरवाइज स्टेट स्पेसिफिक एज सच हमें नहीं करना है. ठीक है, एनी स्टेट्स हियर दे हैव मेंशन अबाउट द कर्नाटका एक्ट ओनली, हमें स्टेट स्पेसिफिक नहीं करना. यू कैन जस्ट गिव कीप गिविंग सच एग्जाम्पल्स सो दैट यू यूज देम एज लाइक कि कंजर्वेशन के लिए कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. तो कुछ स्टेट्स जो हैं वो अपने इनिशिएटिव्स लेकर के आ रहे हैं. रेयर इंसेक्ट साइटेड इन शेषाचलम. अब because it is rare insect, I had earlier told you कि not every species of plant or animal that's discovered need be known, you cannot remember, but because here they're talking about the rare insect, you can try to remember. And then they give you one place, so you should know कि ये जो शेषाचलम हिल रेंजेस है ये कहाँ लोकेट करता है. अच्छा, इस जगह की ना अपनी एक और खासियत है. दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ नोन फॉर अ वेरी स्पेसिफिक थिंग. आई एम गिविंग यू दैट होमवर्क because the questions earlier had been asked on this particular thing in prelims. You figure this out, you search and you figure this out कि ये specific जगह और किस चीज़ के लिए, related to environment only, किस species के लिए famous है. अब वो plant animal क्या species है वो आप figure out करोगे. Now what insect they are talking about here, that is a black percher or a black ground skimmer. So that is a species of a dragonfly. क्योंकि ये first time इस hill range में दिखा. किस फाइलम को बिलोंग करता है और ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, वो आपको उतना नहीं जानना है. दैट क्लासिफिकेशन नीड नॉट बी नोन, बट येस दिस मच आई वुड से इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड देन IUCN के हिसाब से जो इनका रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, ब्लैक ग्राउंड स्किमर वॉज लेबल्ड इन 2016 एज ऑफ लीस्ट कंसर्न, बिकॉज उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस थी इन द सदर्न यूरेशिया एंड द होल ऑफ अफ्रीका. लेकिन फर्स्ट टाइम ये इस रेंज वाले, तो ये आप मैप में लोकेट करोगे कहाँ पर, कौन से स्टेट के आसपास में लोकेटेड है. ठीक है, जहाँ पर ये पहली बार पाया जाता है. दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रेड ड्रैगन फ्लाई, बिकॉज बेसिकली दिस इज अ स्पीशी ऑफ ड्रैगन फ्लाई ओनली, तो इसलिए वो चल जाएगा. ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम. एडिटोरियल वी आर स्किपिंग. ओके, here it is talking about that the finance minister to discuss aviation fuels inclusion in the GST regime. So let's say you are not knowing the situation, the present situation about कि GST में क्या है नहीं है. Although earlier this has figured out in news n number of times and I had asked you to prepare two static things. One is about the GST council, क्योंकि और इसको आपको ज़्यादा इधर उधर से भटकना भी नहीं है. जस्ट डू इट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, इट इज़ गिवन देयर द काइंड ऑफ बॉडी इट इज़ एंड द कॉम्पोजिशन, फंक्शंस एट्सेट्रा, हाउ डज इट फंक्शन एट्सेट्रा. एंड ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू इन जनरल अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ठीक है, क्योंकि ये मेंस में एक थोड़ा पहले आ चुका है, जहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन से टैक्सेस सारे सबड्यू करके इसमें बने हैं.
अब मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो ये लाइन पढ़ने के रीडिंग दिस हेडिंग शुड ब्रिंग दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू दैट अगर हम एविएशन फ्यूल के इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, विच मीन्स देयर इज सम इशू विद द इंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इन द जीएसटी रेजिम। अब क्या ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है अभी या नहीं है, तो इसको इंक्लूड करने के लिए बात हो रही है, या अगर है तो इसका कुछ स्लैब चेंज करने की बात हो रही है, या उसमें कुछ चेंजेस लाने की बात कर रही है। ये क्वेश्चन, क्योंकि एकदम से एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर अगर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा ना, तो फॉर दैट यू विल हैव टू फिगर दैट आउट, एंड व्हेन यू डू दिस ऑलरेडी यू विल गेट द आंसर टू दिस। बाकी जीएसटी काउंसिल का स्टार्टिंग जैसे मैंने आपको बोला, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ दिस, जो भी जीएसटी रिलेटेड न्यूज़ रहेंगे ना, आपके लिए रिलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट वंस यू डू द स्टार्टिंग ऑफ इट, इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू रिलेट दिस। ठीक है, सो प्लीज डू दैट। एंड ऑल्सो दे हैव टॉक्ड अबाउट अनदर बॉडी दैट इज फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको पता होना चाहिए बिकॉज दैट्स एन इम्पॉर्टेंट बॉडी। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या बात करी है, फिशर्स इशू टू कम अप ड्यूरिंग पीरीज विजिट। बेसिकली क्या है कि इंडिया और श्रीलंका को लेके काफ़ी टाइम से, अभी कुछ दिनों से ये चीज़ें न्यूज़ में रह रही हैं, ठीक है, अबाउट द बायलैटरल रिलेशंस। उसी का फॉलोअप न्यूज़ है और ये आते भी रहेगा अभी कुछ वक्त तक, और पिछले कुछ टाइम से आ भी रहा है। सो आपको जस्ट उसको सेपरेटली इंडिया श्रीलंका अलग से प्रिपेयर करना है। एंड देन हियर दे ऑल्सो टॉक अबाउट अ बिम्स्टेक समिट। ठीक है, अब बिम्स्टेक क्या है, ये सब ग्रुपिंग्स में GS2 जो आपका IR का सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशंस का, that syllabus has a section on the international groupings, the regional groupings, agreements, etc. So from here on you will get that. So here they talk about BIMSTEC, that is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. I know थोड़ा सा लेंदी हो जाता है to remember, but you will have to do this. And then they talk about कि इस grouping में कौन कौन से countries हैं, तो आपको सारे इस तरीके के important groupings पता होना चाहिए, उनके members पता होने चाहिए, because they are directly now asking you the question. They give you the options and they tell you इसमें से कौन किस grouping का member है और नहीं है. I understand that at times it becomes difficult to remember, but there is no other way out because they are giving you this question. तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें. And the second thing that you have to notice about these groupings is कि इंडिया उसका member है कि नहीं है. These are the two major things that you will notice. Apart from that, कोई भी grouping जैसे the country that's chairing, उसका head office का, headquarter का, etc. वो सब करना होता है. They have also talked about the Exim Bank. ये भी पता होना चाहिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक क्या है. ठीक है, बाकी इंडिया श्रीलंका का सेम द डिस्कशन दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन रिगार्डिंग द बायलैटरल रिलेशंस. जो सुप्रीम कोर्ट टू वे बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड जुडिशियल स्क्रूटिनी. आई वुड जस्ट से कि आपको ये जो चीज़ है, क्योंकि ये हेडलाइन इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, तो ये ना आपको मतलब न्यूज़ पढ़ के अलग से बस पता होना चाहिए कि ये क्या डेवलप हो रहा है, क्या न्यूज़ डेवलप हो रहा है और व्हाट इज़ हैपनिंग. Let's read thoda sa to get an idea. Of course, we cannot go into the details of each and every news here, but just to get a crux and to get an idea about what it is talking about. So it says that the question whether the state can use the national security. ठीक है, तो एक सवाल क्या खड़ा हो रहा है कि जो स्टेट है वो नेशनल सिक्योरिटी को यूज़ कर सकता है कि नहीं एज अ ग्राउंड टू लिमिट द जुडिशियल स्क्रूटिनी. अब ये क्वेश्चन आया है that has come from for scrutiny again in the Media One TV channel case barely weeks after the Supreme Court in the Pegasus case order observed that the center cannot expect a free pass from the courts as soon as it raises the specter of national security. इतना ही पढ़ के आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा. Let me assume the learners who are or the viewers who are seeing this are not knowing anything about the background, क्या रहा नहीं रहा या इसमें भी आगे क्या है, हमको कुछ नहीं पता है. सिर्फ इतना पढ़ के इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो एक चीज़ जो समझ आ रही है वो क्या आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पेगासस का मामला था, वो तो आपको पता होना चाहिए ना, स्पाईवेयर, क्योंकि ये बहुत बार न्यूज़ में रहा है. आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट ऑल्सो इन द अर्लियर वीडियोज़. नाउ मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जो इसमें लिखा हुआ है उसके बेसिस पर हम इसको डेवलप करते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि अगर सेंटर सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ऐसा कुछ बोल दे कि नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और इसमें जुडिशरी अपना रोल नहीं प्ले कर सकती स्क्रूटिनी का, क्योंकि जुडिशियल स्क्रूटिनी इज़ नीडेड. नहीं तो सेंटर में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कुछ भी करते रह जाएंगे और जुडिशरी अपना रोल नहीं प्ले कर पाएगी, तो फिर चीज़ें सही से नहीं होंगी ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में आप सिर्फ जो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा सामने लाके या शो करके आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोर्ट से बिल्कुल फ्री पास मिल जाएगा, मतलब आप जो मर्जी चाहो करो और कोर्ट्स उसमें कुछ नहीं बोलेगी. लेकिन फिर से ये मामला उठा है जहाँ पर फिर से ये सवाल आया है कि
इस तरीके का जो सवाल है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी को हमें ग्राउंड, एक बेस बना सकते हैं, एक रीज़न बना सकते हैं टू लिमिट द जुडिशियल स्क्रूटिनी. तो बेसिकली इट इज़ अबाउट एग्जीक्यूटिव, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, ये मामला है अगर आप इसको मेंस एनालिसिस पर्सपेक्टिव से देखेंगे. दैट कम्स अंडर द हेडिंग सेपरेशन ऑफ पावर इन GS2. आई थिंक इसमें हो गया है. The whole page is dedicated to Lata Mangeshkar ji, so if you are interested, I think you should definitely read, क्योंकि हम कितना भी अब कुछ बोलें या करें वो कम ही होगा for this particular legend, if I have to say. तो आप पढ़ सकते हो अपने इंटरेस्ट से. बस ऑफकोर्स एग्जाम के लिए सच इट विल नॉट बी इंपॉर्टेंट. उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो मैं आपको 8th के न्यूज़पेपर वाले में बताऊंगी, जहाँ उन्होंने उसको मेंशन भी किया है. ठीक है. वर्ल्ड या IR में देखेंगे तो सेम चीज़ हो जाएगी. रशिया 70% कॉम्बैट रेडी फॉर इन्वेजन. US का ये स्टेटमेंट आया है. इट इज़ अगेन रिलेटेड टू द सेम यूक्रेन क्राइसिस, सो जस्ट यू नो द न्यूज़ इज़ डेवलपिंग. चाइना पाकिस्तान हिट आउट एट यूनिलैटरल कश्मीर मूव्स. नाउ कश्मीर के मुद्दे पे अगर नेबरिंग कंट्री या लेट्स से कोई भी और कंट्री को स्टेटमेंट दे रही है तो आपको उसको उस कॉन्ट्रोवर्शियल एंगल से नहीं लेकर के चलना है. आई वुड से कि आपको बस पता होना चाहिए कि इस मामले में डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, सो दैट इफ़ यू हैव टू कोट इट इन योर आंसर यू कैन कोट इट. ठीक है. डोंट बी इमोशनल इन सच कॉन्टेक्स्ट एंड डोंट ट्राई टू स्प्रेड एनी हेट्रेड फॉर दैट मैटर. ट्राई एंड गेट द क्रक्स ऑफ द न्यूज़ एंड यूज इट इन योर आंसर राइटिंग. अफ्रीकन यूनियन पे वी हैव टॉक्ड अबाउट काफ़ी पहले भी. ठीक है. कुछ टाइम से ये न्यूज़ में रह रहा है, तो इससे रिलेटेड क्लिप है, आप इसको अलग से कवर कर लेंगे. देन हियर दे ऑल्सो टॉक अबाउट इजराइल, तो इसको आप मैपिंग में मैंने आपको पहले बोला है पॉइंट आउट करेंगे. न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ नॉर्थ कोरिया, ये पहले भी न्यूज़ में रह चुका है, सो दिस इज़ अ रेपिटेशन एंड द स्टेटमेंट इज़ कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, सो यू विल डू इट. कनाडा का मैप के लिए मैंने मार्क किया है और इसमें कुछ नहीं है. दिस इज स्पोर्ट्स. ठीक है. दिस इज़ जस्ट अबाउट दे हेल्प यू गेट अंडरस्टैंड थिंग्स अबाउट इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा. बाकी उन सब चीज़ों से रिलेटेड होती है. अगर समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन फिनेंस तो आप अपना देख सकते हो, बट एग्ज़ाम के लिए नहीं करना है कुछ. स्पोर्ट्स का हो गया. अच्छा, जो एक्सप्लेनर आजकल आता है, जैसा मैंने बोला हुआ है पहले भी, दे आर वेरी गुड एंड डीलिंग विद अ लॉट मेनी थिंग्स एंड गिविंग यू द आंसर्स टू मेनी सच क्वेश्चंस. So please do spend time on that. For example, here they talk about the meta platforms and the metaverse, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है. तो वो क्या चीज़ है, उसकी स्टोरी, उसका बैकग्राउंड आप यहाँ से लीजिए. एंड देन ऑफ कोर्स इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट दे हैव गिवन यू, क्योंकि ये करंट रिलेटेड मुद्दा होता है. यू नेवर नो, दे कैन आस्क यू एनी वेयर इन योर मेंस रिलेटेड थिंग्स. और लेट्स से अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों पर हो सकता है जो लोग अभी इस बार वाला इंटरव्यू अपीयर करेंगे उनसे भी पूछा जा सकता है इन दी पर्सनैलिटी टेस्ट. सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच यू नीड नॉट नोट एज सच एट टाइम्स, बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट कि वो चीज़ें चल क्या रही हैं. और उसका जितना ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच आपके पास रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर होता है. रीड्रॉइंग द इलेक्टोरल मैप ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, जो अभी डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड न्यूज़ सारी रह रही थी काफ़ी टाइम से, आई हैव बिन कवरिंग दिस, उसी का डिटेल है. सो प्लीज़ डू दैट. ठीक है. कि रोल क्या होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना. बाकी ये स्पेसिफिक टू JNK है, बट स्टिल एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया अच्छा मिल जाएगा. अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जैसा मैंने पहले भी बोला, चूँकि ये चीज़ें जो चल रही होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं अपना एक ओपिनियन बनाने में. थिंग्स रिलेटेड, आई मीन द थिंग्स दैट आर हाईलाइटेड इन द करंट सिनारियो, तो आप इसको अलग से पढ़ सकते हो. अलग थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है, हो सकता है सबको ना भी समझ में आए. तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इन सब के लिए, क्योंकि एडिशनल चीज़ें ही होती हैं जिसको आप बस एक वैल्यू एडिशन की तरह यूज़ कर सकते हो. But if you can try and make sense, if you can, let's say, search a few keywords, if you're not getting the clear idea from here, it will take time, but of course it will help you build overall understanding of the issue. You need not have to understand every technical bit because computer से related है और ये सब कुछ है, तो उतना नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है. लेकिन एक बार इसको पढ़ेंगे तो एक इंटरेस्ट भी आएगा, और इसमें से अगर आप 10, 20, 30% भी ग्रास्प कर पा रहे हो तो आप उसको कहीं रेफरेंस में यूज़ कर सकते हो. प्लीज़ अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू आर रीडिंग फ्रॉम हियर, यू शुड नो कि आप उसको कनेक्ट करके कहाँ कहाँ रेफरेंस में यूज़ कर पाओ. बिकॉज अगर आपने वो कर लिया तो लेट्स से यू आर डन विथ अ गुड, आई वुड से proportion of the things, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. So with this we end the discussion on the Hindu dated February 7th, 2022. I'll soon be uploading the video for February 8th also, and you can then have it for all the days till now.
And please do like, comment, share, and subscribe to the channel if you have not yet. You can just click on the icon that's being displayed on the screen. You might be seeing the logo AP written there. You can just click on that and you will be able to subscribe to the channel. Thank you so much, guys. Hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.